All right. Hello, friends. Welcome to my career doctor. My name is Prakash Singh Azad, your English language trainer and career counselor. Well, in this video today, we will be talking about how to think in English so that we can speak English better, proper, and fluently. Well, this question has been asked by many viewers, subscribers, and the students of My Career Doctor. Also, yesterday, online student of My Career Doctor named Vag Shivaji Hanumant from Pune, Maharashtra, and Soumya Shukla, I guess, from UP, asked a question that I have seen a lot of videos related to spoken English. Most of the teachers insist to think in English, but it's not practically possible for a beginner to think in English. So please throw some light on it. My dear friends, it's correct that we cannot think in English at once. एक बार में, और ख़ास तौर से वे बच्चे जो बिगनर्स हैं अंग्रेजी में नहीं सोच सकते हैं. It's fact. Especially those who are from Hindi medium, other boards like Punjabi, Odia, Bengali, Tamil, or like any other boards of India, they are not able to think in English in the starting. Why? Because समाज में एक ऐसा अफवाह है अंग्रेजी को लेकर कि आप टेंस आपको आ जाएगा तो साहब इंग्लिश बोलना आ जाएगा. So what I have seen in my life, that since when I started growing up, that all the teachers and most of the teachers, they focus to either tense or the grammar, difficult things like question tag and all. See, speaking English is an art, और जो भी इंसान इस art पर focus करेगा वो अंग्रेजी बोल लेगा. All right. Although in corporate houses people will make you fear MTI means mother tongue influency. Well, इसका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे. But in this video today we will talk about how to think in English. तो ये मैंने आपसे कहा कि इस पे हम लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर. अब सवाल ये है, मैं कोई भी साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक चीज़ों की बात नहीं करूंगा. ब्रेन में ये हार्मोन्स आते हैं, फिर वैसा होता है, फिर हम ऐसा सोचते हैं. दैट वुड बी बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ यू गाइज. सो वी विल टॉक practical things. See, theoretically, if you ask anybody or like the normal people that how to learn English, they will reply, read newspaper, watch TV news, watch Hollywood movies, and think in English. Again, the question is how to think in English, how a beginner can think in English. देखिए, हम लोग बचपन से दोनों पैर पे अच्छे से चल लेते हैं. It's because we are habitual. We have developed the habit. All right. हम दाहिने हाथ से ही खाते हैं. Why? Because we have developed the habit. All right. So to do anything in this world, we have to develop the habit first. 21 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक आपको लगातार अपने मन की इच्छाओं को मारकर उस हैबिट को डेवलप करना होगा. अब सवाल ये आता है that how to think in English. Like I have told you in so many videos, either you are a beginner or intermediate level, आपको LSRW दिखने से ये जितने छोटे और आसान लगते, प्रैक्टिकली थोड़े से ये डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं. लाइक आई सेड यू, इट टेक्स एटलीस्ट 21 डेज टू डेवलप आवर हैबिट्स. हैबिट्स को डेवलप करने में कम से कम 21 दिन का टाइम आपको लगता ही है. तब आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी. यू माइट हैव हर्ड अ बुक नेम एटॉमिक हैबिट्स. देयर इज अ कोट दैट्स रियली वेरी नाइस, दैट वी कैन नॉट चेंज आवर फ्यूचर एट वंस. What we can do is we can change our habits, and these small habits will change our future. Listen, buddies, come on. What we have to do is, like I said, L stands for listening. आपको चीज़ों को ना सुनना होगा. हमने बचपन से हिंदी, पंजाबी, उड़िया जो कुछ भी हमने सुना उसको सुनकर वो भाषाएं बोलना शुरू कर दिया. अब अंग्रेजी की जो बात है, चूंकि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं होता, हम शिकायत करते हैं सर मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है, मैं क्या करूं. आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो इस ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है उसके सामने सबसे ज़्यादा मुसीबतें आती हैं. आप एक टीचर बनना चाहते हैं, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स. आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स. यू वांट टू डू जॉब, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स. यू वांट टू डू बिजनेस, यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स. आप कुछ नहीं करना चाहते तो शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ध्यान रखिएगा. देयर आर टू पेन्स, पेन ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन का दर्द, और पेन ऑफ रिग्रेट, पछतावे का दर्द. अभी कुछ मत कीजिए, बाद में जब पछतावा होगी तो फिर अपनी आत्मकथा रो कर अपने बच्चों को अपनी ही वीर गाथाएं आप सुनाएंगे और आपके बच्चे मजे लेंगे. चूंकि आपने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, वो आपकी बातें नहीं मानेंगे. बस दुआ नहीं दे रहा हूँ, घबराइए मत, आप लोग मेरे बच्चे हैं, दुआ दे रहा हूँ.
Anyways, so just I want to tell you one thing that how to develop this habit कि आपको लगातार सुनना होगा, मन नहीं करेगा तब भी, पेन ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का दर्द। हमें मन नहीं करता स्कूल जाने का फिर भी हम जाते हैं, हमें मन नहीं करता कोई काम करने का फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस काम से हमको फायदा होगा। आप ऐसी काम जिसमें कोई फायदा नहीं हो, फ्यूचर में आपको मजा बहुत देगा बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और हम आम इंसान थोड़े से क्षणिक मजा के लिए हम अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों उस भट्टी में झोंक देते हैं जो पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा, और उस राख को आप गंगा में विसर्जन भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कीबोर्ड वॉरियर्स आर डूइंग नाउ अ डेज। दिस इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू एंड लर्न इंग्लिश। हम लोग वीडियोज बहुत ज्यादा देख लेते हैं इंग्लिश की और करते कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड पैसिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में आप खुद पे इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सुनिए इंग्लिश को। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल विच यू हैव टू इंप्लीमेंट इन योर एजुकेशन, नॉट ओनली इन इंग्लिश। आप किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, एक्टिव रिकॉल। प्रैक्टिस सुनिए पहले इंग्लिश में, जो सुनते हैं उसको बोलिए। लाइक कटरीना कैफ, लाइक रेखा और ऐसे बहुत सारे श्रीदेवी, इन लोगों को हिंदी नहीं आती थी। इन लोगों ने स्क्रिप्ट रट रट कर, सुन सुन कर, गानों को सुन सुन कर क्या किया। आप एक सिंपल सी चीज कहता हूं आपको, पंजाबी गाने सुन सुनकर नॉन पंजाबीज भी पंजाबी गाने सुनकर पंजाबी बोलने लगे। वाई? बिकॉज दे हैड इंटरेस्ट। तो आप अपने इंटरेस्ट की चीजें, अगर आपको क्रिकेटर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमेंट्री देखिए, उनकी इंटरव्यूज सुनिए, मूवीज के इंटरव्यूज देखिए, मूवीज देखिए। बॉलीवुड में भी इंग्लिश मूवीज है, मैंने लिस्ट बनाया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ऐसा करने से आपको क्या लगेगा? बर्डन नहीं होगा आप पर, आप वही चीज देख रहे हैं जिसमें आपको क्या है, इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे? एक चीज आपका एक्सरसाइज हो रहा है। दूसरा हैबिट क्या है आपका? स्पीकिंग। जो कुछ भी आपने देखा, गाने याद कर लीजिए। प्लीज ट्राई टू स्पीक दैट इन इंग्लिश लाउडली। सर मेरे पास कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप वॉरियर हैं, कीबोर्ड मत बनिए, कीबोर्ड वॉरियर टाइप करने वाला मत बनिए, रियल वॉरियर बनिए। कम ऑन। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आप इसको सुनिए और खुद से बोलिए, एकलव्य बन जाइए मेरे दोस्त। और हाँ, ये पॉसिबल है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, नहीं तो बहाने देते रहिए। मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका क्योंकि मैं बहुत बैकवर्ड विलेज से हूँ। मैं अंग्रेजी नहीं सीख सका क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे दोस्त, ये 2020 है, अभी किस आने वाला है इसके बाद, तो आ रहा है ना, किस नहीं आया है। एनीवेज, तो क्या होगा कि आपको इन चीजों पर फोकस करना होगा। कोई नहीं हो तो क्या हुआ, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए ना। इन द स्टार्टिंग यू विल फाइंड डिफिकल्टीज बट स्लोली यू विल सी कि लोग आएंगे और आपकी मदद करने लगे। कोई ना कोई ईश्वर तो आपके पास भेज ही देंगे जब आप पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति के साथ इसमें ईश्वर की पूजा प्रार्थना, जो आपका कर्म है, कर्म आपका क्या है, पढ़ाई करना, सीखना, उसमें आप लग जाएंगे। तो तीसरी चीज आपका क्या है? रीडिंग। रीडिंग यानी पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स। आपको बोला इन द स्टार्टिंग आई सेड यू चंपक, लिंक दे दूंगा मैं आपको, ले लीजिएगा। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बुक्स से आप पढ़िए और वर्ड्स को आप निकालिए, उसको लिखिए, याद कीजिए। द फोर्थ इज राइटिंग। राइटिंग में आपको बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक टेंस, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स वोकैबुलरी कीजिए। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसको आप देखिए, सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए। इन चारों चीजों को, मैं सिर्फ हवा में ये बातें नहीं कर रहा। आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू। वैसे ही हवा में नहीं बोल रहा। अगर ये चारों चीजें आप करेंगे तो आप स्लोली देखेंगे कि आपका जो दिमाग है ना, वो सोचने लगेगा। पहले 1-2 सेंटेंस सोचेगा, फिर धीरे धीरे 4, 5, 6, 7। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, पहले तो हम गिर जाते हैं, उसी तरह पहले आप बोल नहीं पाएंगे, घबराएंगे, हकलाहट होगी। फिर धीरे 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 जब आपको आदत होगी, लेट्स सपोज पिछले कुछ दिनों से मैं शीर्षासन सीखने की कोशिश कर रहा हूं। सो इन द स्टार्टिंग फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पुट माय लेग्स अप, बट स्लोली आई डिड इट एंड नाउ I feel comfortable doing this शीर्षासन, skipping, and there are so many exercises which I have learned and developed myself at the age of like 30 plus I have done it. Why not you guys can do it? You know what is the problem with all of us? कि हम लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते हैं, और रिस्क लेने से हम बचते हैं। हम चाहते हैं कि किसी टीचर को पैसे दे दूं, वो मेरे बदले में काम कर देगा, वो सिखा देगा। तो फिर आप, इट्स ओके, डिसीजन इज योर्स। दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रेन योर ब्रेन। इट विल टेक 3 to 4 months। शुरुआत में तो आपके दिमाग में इंग्लिश के नाम पर लड्डू लड्डू दिखेगा, जीरो ब्लैंक दिखेगा, लेकिन 3 महीने तक लगातार ये एक्सरसाइज आप करेंगे। आप कम से कम 21 दिन तक आप कीजिए ना, 1 महीने तक ये चारों चीजें, आप देखेंगे कि आपका ब्रेन धीरे धीरे पहले 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस ये प्रोसेस कर रहा है, धीरे 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 you would be able to speak in English. You do not need to go anywhere, and if you want to practice more and more, we have online in this
लॉकडाउन वी हैव ऑनलाइन टेलीग्राम क्लासेस देयर एट माई करियर डॉक्टर। फोन नंबर भी आपको दिख जाएगा 9958567745, या फिर ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर लीजिए। इस वक्त क्लासेस बंद है, अगर आप अपना एडमिशन करवाना चाहते तो वहाँ करवा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट वी गिव लाइक मेक आवर स्टूडेंट एक्सपर्ट, बट येस वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू रिमूव देयर हेजिटेशन। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चों को हेजिटेशन इतनी है कि वो लोग डर के मारे बोल ही नहीं पाते हैं। इतने दबे कुचले बच्चे हैं कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं, और ऐसे में पूरी जिंदगी ट्रांसलेशन सीखने में लगा देते हैं, क्वेश्चन टैग, नरेशन। अरे भाई, आप बैंक पीओ की एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं क्या? नहीं ना। तो आप नॉर्मल बेसिक चीजें सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। फाइनली यू विल हैव टू कम टू द बैटलफील्ड एंड प्रैक्टिस अ लॉट। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, आई एम सॉरी, you cannot do anything. The main thing is practice. How? Like I told you, listen in English. Whatever you listen, try to speak also. थोड़ा सा ही ज़्यादा ही गाने याद कर लीजिए, स्क्रिप्ट याद कर लीजिए, स्पीच याद कर लीजिए, बोलिए, दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। एक स्पीकिंग पार्टनर तलाश लीजिए। सर नहीं है कोई तो कोई बात नहीं, सो जाइए घर में आराम से, ऐश कीजिए, एंजॉय कीजिए, टिकटॉक यूज कीजिए। आई एम सॉरी, आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग, बट इफ यू डू like I have told you in the starting, you will see that a lot of difficulties you would have, but slowly you would see that all the difficulties get away. If you want to do anything in this life, then very first you will see that a lot of difficulties in front of you, like mountains. Okay, but if you do it slowly, तो आप देखेंगे कि सारी मुसीबतें अपने आप क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। हुआ है, प्रैक्टिकल किया है, फील किया है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप ऐसे करेंगे तो बच्चे लोग, आपका जो ब्रेन है ना, वो धीरे धीरे प्रोसेस करने लगेगा। 2-3 चीज़ लगातार कीजिएगा। रीडिंग लाउडली, हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज को, हर लैंग्वेज को लाउडली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बोलने की, एक्ट लाउड, स्पीक लाउड। आई होप यू गेटिंग दिस ना। एक्टिंग के जरिए बोलकर, देखकर, जैसे कैमरे के सामने बोलिए, सेल्फी मोड में बोलिए, लोगों के सामने बोलिए, फील्ड में जाकर बोलिए, गार्डन में जाकर बोलिए। तो ऐसा करने से आपकी हेजिटेशंस रिमूव होंगी। वी हैव मेड सो मेनी, एटलीस्ट आई गेस अराउंड 20 to 30 videos we have made just to remove the hesitation. We have worked a lot with the students of my career doctor, और हमारे जो कोचिंग में बच्चे आते हैं उन पे हम यही फार्मूलाज लागू करते हैं। ग्रामर भी पढ़ाते हैं, बेसिक, बहुत डीप में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, और इन्वॉल्व करने की वजह से दे आर कैपेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। वे लोग 100% परफेक्ट नहीं हो जाते बैराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप की तरह, बट येस दे स्पीक बेटर इंग्लिश सो दैट दे कैन लीड देयर लाइफ एंड दे कैन लिव हैप्पीली इन देयर लाइफ। फिर उनकी ज़िंदगी में इंग्लिश नाम का जो डर और दहशत है ना, वो हावी नहीं होता है। My dear friends, I tell you once again, I'll keep on teaching। जैसे कि अभी मैंने वर्ड्स इडियम्स का जो सीरीज शुरू किया है, ये लगातार जारी रहेगा। इसमें मैं आपको बताता रहूँगा, आप करते रहिए लगातार गाइडेंस, बट यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। और एक चीज़, जिन बच्चों को माई करियर डॉक्टर का वीडियो देखकर अंग्रेजी बोलने की प्रेरणा मिली, बोलने की कोशिश करने लगे, या जो अच्छा बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट करके अपनी बात बताइएगा, और अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर हमें दे दीजिएगा। हम आपसे बात करेंगे। अगर हमें लगता है कि आपने माई करियर डॉक्टर चैनल के जरिए अंग्रेजी सीखा है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा कॉमेंट में ज़रूर। हम आपसे बात करना चाहते हैं दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई करियर डॉक्टर, एंड आई होप दैट you guys would follow these rules, and these will help you a lot to speak in English. Not only English, these will help you to develop and transform your personality, life. You must get success not in one day, but one day you must do it. डटे रहोगे तो निखर जाओगे, हट जाओगे तो बिखर जाओगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, stay happy and be the best. जय हिंद, जय भारत।